Good afternoon, everyone. Welcome to today's webinar, Life Lessons by Sanjeev. Thank you all for joining us on a Sunday afternoon, and we're very excited to kickstart this session. And just a quick brief about Sanjeev for those of you who don't know Sanjeev already. Sanjeev Sharma has more than 4 decades of corporate experience in India, Middle East, and Africa, in which time he has transformed many organizations from zero to billion-dollar organizations. And apart from that, he's received many prestigious awards such as NRI Achievers Award, Bharat Sama Parsvi Award, right? And in his free time, Sanjeev loves doing what he's going to do today, which is giving us all a motivational talk. He's also a life coach. So, uh, Sanjeev, I would like to welcome you for this webinar, and over to you. Cherish your vision and dreams as they are the children of your soul. A very good afternoon, Namaskar, Sat Sri Akal and Salam Alaikum to all of you. आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रीम्स पे। सपने कैसे देखने चाहिए और उनको कैसे फुलफिल करना चाहिए। This is an interactive session, so all of you may ask questions in between also, or we certainly have end of the session, we have a question and answer time. Before I start, I would like to ask two questions to all of you. My first question to everybody is, how many of you see dreams, and how many of you believe that dreams come true or dreams can be fulfilled? So Mrinal, if you can put those questions. Yes, these questions are up there. So I would request the audience to kindly answer these questions. And again, we're not talking about dreams that we see every day, but dreams that we aspire to achieve. These are the dreams that we're talking about. Come on, guys. Some more people left to answer quickly. Okay. Can the results be seen? 93% see dreams and 86% believe that dreams get fulfilled. That's wonderful. Excellent. In fact, this is far more than what I had anticipated. So this makes my work far more easier. Okay, so let's start. Let me take you to my dream of words. मैं आपको अपने सपनों की दुनिया में ले चलता हूं. Keep smiling and keep clapping. तालियां बजती रहनी चाहिए, भले मुझे सुनाई ना पड़े. Thought creates a physical matter. Intent determines the end results. आप जो सोचते हैं वो होता है और आपकी नीयत उसको अंजाम तक पहुंचाती है. दोस्तों, I had a very humble beginning. My father was a government officer, and since he was a senior government officer, तो उनको हमेशा बहुत बड़ा मकान, बंगला, गाड़ी, घर में काम करने के लिए लोग, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट से दी जाती थी. So I had seen all these things right from the beginning, but I had never seen money because he was an honest officer. मुझे आज भी याद है रायबरेली के मकान की वो खिड़की
जहां मैं और मेरे बड़े भाई साहब बैठ के अक्सर ये बातें करते थे कि हम जब बड़े होंगे तो इम्पाला कार खरीदेंगे। जब हम बड़े हुए और कार खरीदने के लिए सक्षम हुए, तो देन वी रियलाइज that we can buy bigger car than Impala car. And not only that, we were in a position to buy cars, not car. तो ये बचपन के सपने की यहां से शुरुआत हुई और वो सपना आगे चल के पूरा हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एजुकेशन खत्म करने के बाद आई केम टू दिल्ली और 15 दिन के अंदर मुझे दिल्ली में एक नौकरी मिल गई। उस जमाने में ऑब्वियसली मोबाइल फोन और इंटरनेट वगैरह तो होते नहीं थे, तो हम लोग बाय पोस्ट अप्लाई करते थे, बाय पोस्ट ही इंटरव्यू लेटर्स आते थे। 15 दिन में मुझे एक नौकरी मिल गई जिसमें मुझे 300 रुपए सैलरी मिलती थी और 5 रुपए रोज कन्वेंस के दिए जाते थे। आई हैड टू सेल ऑटोमेटिक स्लाइड प्रोजेक्टर, जो इंडिया में पहली बार बनना शुरू हुआ था। एक हाथ में मैं वो 5 kg का प्रोजेक्टर और एक हाथ से डीटीसी की बस पकड़ के मैं लटक के एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। मैं अक्सर सोचता था कि मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और कुछ समय बाद मुझे हिंदुस्तान लीवर में नौकरी मिल गई। हिंदुस्तान लीवर आप सभी लोग जानते होंगे, जो हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनियों में मानी जाती है, जो ये लक्स सोप और सर्फ वगैरह बनाते हैं। मुझे याद है अभी भी कि मैं अक्सर संडे को अपने मकान मालिक के पास बैठा करता था और वो मुझे अपने बेटे की पासबुक दिखाते थे और हमेशा ये कहते थे कि बेटा तू भी गल्फ चला जा, मेरा बेटा देखो कितने पैसे वहां से भेजता है। तो मैंने सोचा कि आई ऑब्वियसली नीडेड लर्निंग एंड अर्निंग बोथ, तो मैंने सोचा मैं भी गल्फ चला जाऊं, मुझे पैसे बहुत चाहिए और वहां मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ समय बाद मैं दुबई चला गया। मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। दुबई में हम जब मॉर्निंग में गाड़ी से ऑफिस जाते थे, तो अक्सर ये देखते थे, हर रोज बल्कि ये देखते थे कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई माँ बाप से बात कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी इनफैक्ट हम अपने एक फ्रेंड के साथ उसके बच्चों को छोड़ने भी जाया करते थे, और दुबई में उस वक्त एक स्कूल होता था जहां सारे बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते थे। तो मैं अक्सर सोचता था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने बच्चों को इसी स्कूल में दाखिला दिलवाऊंगा एंड आई वुड ड्रॉप देम एवरी डे। बड़ा मजा आएगा। देखिए उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और शादी होगी तो बच्चे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मैं ये सपना देखता था कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं इनको उसी स्कूल में एडमिशन दिलवाऊंगा और रोज स्कूल छोड़ने जाया करूंगा। विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट मैरिड और मेरे 2 बेटे हुए, और आप यकीन माने उन दोनों बेटों को मैंने उसी स्कूल में दाखिला दिलवाया और हर रोज उनको मैं स्कूल छोड़ने जाया करता था। तो मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। उस जमाने में जब हम लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते थे तो अक्सर न्यूज़पेपर में लिखा होता था अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए कि यूके यूएस एजुकेटेड वुड बी प्रेफर्ड। जो लोग यूके और यूएस से पढ़े हुए हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस जॉब के लिए। तो मैं सोचता था मैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाऊंगा। तो जब हमारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई खत्म की उस स्कूल से, तो मैंने वो दोनों बच्चों को, एक मेरा बेटा जो है वो यूएस पढ़ने चला गया और दूसरा मेरा बेटा यूके पढ़ने चला गया। तो मेरा ये भी सपना पूरा हुआ बच्चों को विदेश में पढ़ाने का। मैं जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाया करता था तो करीब 2-2.5 घंटे की ड्राइव होती थी।
तो मैं अक्सर रास्ते में अपनी पूरी सीडी रिवाइंड किया करता था और मैं ये सोचता था कि मेरे सपने कैसे कैसे सारे पूरे हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि वन शुड सी ड्रीम्स बिगर देन स्टार्स, डीपर देन सी एंड हायर देन माउंटेन्स। आप जो सपने देखें वो ऐसे देखें जो तारों से बड़े हों, समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरे हों और पर्वत की ऊंचाई से भी ज्यादा ऊंचे हों। सी ड्रीम्स विच आर बिगर देन स्टार्स, डीपर देन सी एंड हायर देन माउंटेन्स। तो अब क्या बात थी, 2002 में दुबई गवर्नमेंट ने एक्सपैट्रिएट्स को प्रॉपर्टी खरीदना अलाउ कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि मैं यहां पे प्रॉपर्टी खरीदूं और 2005 में मैंने दुबई में एक बड़ा विला खरीदा। इनफैक्ट 2005 जुलाई में एक महीने में, सेम मंथ में, विद इन 15 डेज मैंने 2 मकान खरीदे, एक दुबई में खरीदा और एक दिल्ली में खरीदा। मेरा ये सपना भी पूरा हुआ। फिर मैं ये देखता था लोगों के टीवी पे कि लोगों को अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, लोगों के इंटरव्यूज आ रहे हैं। तो मैं सोचा करता था मैं भी बहुत अच्छे काम करता हूं, मुझे भी कुछ अवार्ड्स वगैरह मिलने चाहिए। 2005 में मुझे एनआरआई अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया और 2009 में मुझे भारत सम्मान प्रवासी अवार्ड भी इंडिया में दिया गया। और जब ये अवार्ड मिले तो मेरा टीवी पे इंटरव्यू भी आने लगा, रेडियो पे भी इंटरव्यू आने लगे। न्यूज़पेपर में तो खैर मेरी फोटोग्राफ बहुत सालों से आती थी क्योंकि मैंने एक क्लब का फॉर्मेशन किया था जिसकी हम लोग हर महीने मीटिंग करते थे एंड न्यूज़पेपर वाले उसको कवर करते थे। तो मेरा ये सपना अवार्ड मिलने का, टीवी पे आने का, रेडियो पे आने का, ये भी मेरा पूरा हुआ। और यही नहीं बल्कि कुछ दिनों के बाद मुझे एक टीवी स्टेशन से ऑफर आई कि आप एक शो कंडक्ट कीजिए, लाइव शो कंडक्ट कीजिए और लोगों को ये बताइए हाउ टू चेंज योर लाइफ। तो मैं लाइव इंटरैक्टिव शो कंडक्ट करने लगा टीवी पे कि हाउ टू चेंज योर लाइफ। अब आप ये देखें कि एक वो व्यक्ति जिसने 300 रुपए की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत की थी, वो सपने कैसे देखता था, विदेश जाएंगे, बच्चों को रोज स्कूल छोड़ने जाएंगे, बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अवार्ड मिलने चाहिए, टीवी पे इंटरव्यूज आने चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। फ्रेंड्स, if I start sharing about my dreams, I think it would take days. तो चलिए आपको अब कुछ और लोगों के सपनों की दुनिया में ले चलते हैं। तो एक नाम दिमाग में आता है शाहरुख खान का। आप सभी लोग शाहरुख खान को जानते हैं। शाहरुख खान जब शुरू शुरू में मुंबई आया था तो अक्सर चौपाटी पे, बीच पे अपने दोस्तों के साथ बैठ के शाहरुख खान यूज्ड टू से कि वन डे आई विल रूल दिस सिटी, मैं यहां का बादशाह बनूंगा। आज शाहरुख खान किंग खान के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मिरेकल्स। शाहरुख खान के सारे सपने पूरे हुए। अंसार अहमद शेख एक ऑटो ड्राइवर का बेटा, जो पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन ऑटो ड्राइवर का बेटा था, बहुत गरीब था।
और उसके फादर ने अंसार के भाई बहनों की पढ़ाई छुड़ा दी थी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और एक दिन वो स्कूल गए टीचर से कहने की इसका नाम काट दीजिए स्कूल में, अंसार अहमद का। तो टीचर्स ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, आप इसका नाम मत कटवाइए। 12th में अंसार अहमद शेख को जब 97% मार्क्स मिले तो उसके बाद उनके फादर ने उनको पढ़ाई छोड़ने के लिए कभी जिद नहीं की। 21 साल की उम्र में, 21 इयर्स की एज में अंसार अहमद शेख यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर्स बने इंडिया के। यू कैन इमेजिन कि 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बनना 1:1 मिलियन का रेशियो है। ये अंसार अहमद का सपना था जो पूरा हुआ। आसना कन्नूर विलेज केरला में है, वहां की एक महिला है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि वो अपने गांव में आके डॉक्टर बने और अपने गांव वालों की सेवा करें। 6 साल की उम्र में खेलते वक्त किसी ने बॉम्ब फेंका, क्रूड बॉम्ब, और आसना का राइट लेग काट दिया गया। बावजूद राइट लेग कटने के और गरीबी के आसना ने एमबीबीएस कोर्स पूरा किया। 4th फ्लोर पे आसना का क्लास होता था। आप सोचिए कि कितने कष्ट से वो जाती होंगी। एंड फाइनली आसना डॉक्टर बनी, अपने विलेज में डॉक्टर बनी, और उनका पहला पेशेंट अनवे स्वरूप करके 4 साल का बच्चा था। अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता है? अमिताभ बच्चन was rejected for his height, for his voice, for his looks. But then we know what Amitabh Bachchan is today. यही नहीं, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन had lost everything. यहां तक कि he became bankrupt. But he did not leave hopes. He did not stop putting efforts. And finally, केबीसी से अमिताभ बच्चन की वापसी हुई। And now today he is a legend. कहते हैं awaken yourself to the power of your mind to make things happen. Once you do that, the entire universe would conspire with you to work magic in your life. दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये संजीव शर्मा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आसना, अंसार अहमद शेख, ये सब लोग जो है बड़े किस्मत वाले लोग हैं और Almighty has always been very kind to them, तो इसलिए इनके सारे सपने पूरे होते रहे। बट ऐसा नहीं है। हमारे एक एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब अक्सर कहते थे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। जब हम अपने हाथ में वो 5 kg का प्रोजेक्टर लेके एक हाथ से बस में लटक के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो हम अपनी जान भी हथेली पे लेके चलते थे एट टाइम्स। आई वॉज बर्निंग लाइक अ सन एट दैट टाइम। 300 रुपए में रहना, खाना, सब कुछ करना। आई वॉज बर्निंग लाइक अ सन एट दैट टाइम। आसना एक पैर कटने के बावजूद 4th फ्लोर पे क्लास अटेंड करती थी। गरीबी, अंसार अहमद, घर से इतना ज्यादा प्रेशर की पढ़ाई छोड़ दो। We all used to burn like a sun at that time.
And today, very proudly, we can say that we are shining like a sun. तो आइए आपको बताते हैं कि ये चीजें हम लोगों ने कैसे हासिल की, हम लोगों ने क्या किया उसके लिए. What did we do? So please remember, first three things I will tell you. The first is desperation. When you want to achieve something, you have to be very desperate. Everyone knows MS Dhoni, a very humble beginning. उनके बाबूजी भी उनकी जान के पीछे पड़े रहते थे कि भाई गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन करो, गवर्नमेंट नौकरी ज्वाइन करो. यहां तक कि फाइनली प्रेशर में आके MS धोनी ने स्पोर्ट्स कोटे से रेलवे में टीटी की नौकरी भी करनी शुरू कर दी. लेकिन जिस दिन से MS धोनी ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उस दिन से उसका सपना था कि वो क्रिकेटर बने. Not only he became one of the most successful Indian captain, but he also became one of the highest paid sports person in the world. And MS धोनी ने हमेशा अपने हर इंटरव्यू में ये बात कही है कि मेरे सारे सपने पूरे हुए. So first is desperation. He was extremely desperate to become a cricketer. The second, conviction, belief. जब हम कन्विक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिंसेस डायना का नाम दिमाग में आता है. Princess Diana is a very well-known, used to be very well-known personality. Unfortunately, she is no more with us. 1980 में AIDS arrived on the world stage. Like 2019 में कोरोना वायरस आया, उसी तरीके से 1980 में AIDS arrived. और लोगों का ये मानना था कि अगर आप एड्स पेशेंट को छू लेंगे तो आपको एड्स हो जाएगा. यहां तक कि अगर आपने वो टॉयलेट सीट यूज कर ली जिस पे एड्स पेशेंट बैठा है तो आपको एड्स हो जाएगा. अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने एड्स पेशेंट को ठीक करने के लिए एक सेंटर खोला यूके में. And she shook hands with many AIDS patients without even gloves. Without even gloves. That was her conviction, because she always used to say कि ऐसा नहीं है कि आप AIDS patient से हाथ मिलाएंगे तो आपको AIDS हो जाएगा. That was her belief. So number two is conviction. Number three, complete trust. Trust starts with truth and ends with truth. It takes years to develop trust, seconds to break trust, and forever to repair trust. एक प्लेन उड़ रहा था. There was a flight going from one place to another place. और suddenly announcer ने announce किया कि please fasten your seat belt because there is too much of turbulence. खराब मौसम की वजह से आप सभी लोगों से प्रार्थना की जाती है कि आप लोग अपने सीट बेल्ट बांध लें. कुछ क्षणों के बाद दोबारा अनाउंसमेंट हुआ कि वी आर सॉरी वी कैन नॉट सर्व बेवरेजेस बिकॉज ऑफ बैड वेदर
and too much of turbulence, सारे पैसेंजर्स परेशान होने लगे। और फिर कुछ क्षणों के बाद तीसरा अनाउंसमेंट हुआ कि सॉरी फ्रेंड्स, वी कैन नॉट सर्व मील बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ टर्बुलेंस एंड वेरी बैड वेदर आउटसाइड। और प्लेन जो था वो ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया, ठक ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। सारे पैसेंजर्स जो थे वो आपस में, कुछ लोग एक दूसरे से बात करने लगे, बहुत सारे लोग प्रेयर्स करने लगे। ऐसे मौके पे लोग फौरन अलमाइटी हायर इंटेलिजेंस को याद करने लगते हैं, तो लोग प्रेयर करने लगे। देयर वाज अ ओल्ड मैन sitting in the same flight. He was watching one girl, very small little girl, sitting few seats ahead and continuously reading a book. She was unmoved. And this passenger was thinking that what kind of girl is this? छोटी सी बच्ची और वो जो है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और सारे लोग फ्लाइट में परेशान हैं और फ्लाइट में ठक ठक काफी टर्बुलेंस हो रहा है। Fortunately, plane landed safely and all the people started disembarking. That small girl was still sitting, and out of curiosity, this old man, he went to that girl and asked, why you were unperturbed, why you were not stressed? And she gave a very good answer. She said, the pilot of this plane is my father, and he had promised that he will take me home. That is complete trust. She knew, no matter what happens, I trust my father. So desperation, conviction, complete trust. Now, let us talk about some other values. मुझे याद है मैं मुंबई में लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, और उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स थे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज और एमडीज, और वो सारे ट्रेनिंग पार्टनर से यही कह रहे थे कि आप लोग स्टूडेंट्स को वैल्यूज जरूर सिखाइएगा, क्योंकि वैल्यू ड्रिवन स्टूडेंट्स को रिटेन करना बड़ा आसान होता है। So let's talk about some of the values which helped us in fulfilling our dreams. So number one, positive and negative mindset. Law of positive thinking. एक पिक्चर आई थी 1973 में, उसका नाम था मेरी बीबी की शादी। अमोल पालेकर और रंजीता ने उसमें एक्ट किया है, और अमोल पालेकर एक 41 इयर्स ओल्ड प्रोफेसर है एक कॉलेज में। उनके कॉलेज के एक और प्रोफेसर जिनकी एज 41 की थी, वो किसी भयानक बीमारी से उनकी मौत हो गई, और अमोल पालेकर भी वहां बैठे थे जब उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग प्रेयर कर रहे थे। अमोल पालेकर को ये लगने लगा कि मैं भी 41 का हूं, मेरे भी हार्ट में पेन हो रहा है, तो शायद अब मेरी भी डेथ हो जाए जल्दी। तो पूरी पिक्चर में अमोल पालेकर ये प्लान करते रहे कि अब मेरी डेथ होने वाली है, तो मुझे अपनी बीवी की शादी किसी और से कर देनी चाहिए, जिससे उसको मेरे जाने के बाद कष्ट ना हो।
That is negative mindset. What is positive mindset? Let me share my own story. 3 years back, I had a massive heart attack. और जब मैं ओटी में था, जब एंजियोग्राफी हो रही थी, तो आई फाउंड डॉक्टर गेटिंग वेरी स्ट्रेस, वेरी नर्वस एंड शाउटिंग. वहां आदमी पूरी तरह से बेहोश नहीं होता है, उसको होश में रखा जाता है और उससे लोग बोलते भी रहते हैं. तो खैर दूसरे दिन जब मैं अपने वार्ड में आईसीयू में डॉक्टर से मिला, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, व्हाई यू वर गेटिंग सो नर्वस? तो ही सेड कि आप जिस कंडीशन में इमरजेंसी में आए थे, उस कंडीशन में 75% लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो रास्ते में ही दे एक्सपायर. और जब आपकी एंजियोग्राफी हो रही थी तो पता चला कि आपके सिर्फ 2 आर्टरीज हैं. नॉर्मली 3 आर्टरीज होती हैं सबके, तो उन्होंने कहा आपकी एक आर्टरी रिडंडेंट है, सिर्फ 2 ही आर्टरीज हैं, और वो दोनों 90% ब्लॉक थी. और ब्लड क्लॉट्स जो है आपके बॉडी में स्कैटर्ड होने लगे. इस कंडीशन में 90% पेशेंट्स दे डाई ऑन द ऑपरेशन थिएटर. तो इस वजह से वो नर्वस हो रहे थे. उस वक्त वो ये डिसीजन नहीं ले पाए कि हमें फाइनली स्टंट लगाने चाहिए या हमारी हार्ट सर्जरी होनी चाहिए, सिंपली बिकॉज ब्लड क्लॉट्स वर स्कैटर्ड इन माय बॉडी. तो पहले उन्हें उसको कंट्रोल करना था. तो आफ्टर 2 days फाइनली मुझे दूसरे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया. And I remember my brother had met many doctors, and most of the doctors they had said कि हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी इनकी. बट कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि शायद स्टंट लगा के काम हो जाए. तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, उस वक्त मेरे दोनों बेटे, जैसा एज आई टोल्ड यू दैट वन वेंट टू यूएस, वन वेंट टू यूके फॉर स्टडीज. तो वो लोग दोनों वहीं थे, उनको खैर पता भी नहीं था कि मुझे मैसिव हार्ट अटैक हुआ है. तो मॉर्निंग में माय ब्रदर केम एंड ही टोल्ड मी कि कल तुम्हारे छोटे बेटे से बात हुई थी और आज उसका एक इंटरव्यू है इंटर्नशिप के लिए. Now when I was going to operation theater, I had 3 things in mind. पहला मैं ये कह रहा था हायर इंटेलिजेंस से कि प्लीज मेक श्योर दैट मेरा हार्ट ऑपरेशन ना हो, सर्जरी ना हो, बिकॉज दैट इज वेरी कम्बरसम, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रिकवर एंड लॉट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स एज वेल. तो आई वाज सेइंग, या मृणाल, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. Yeah, now it's fine. Your video was hung. Now you can carry on. Yeah. Okay. So I was telling to myself also कि मेरी हार्ट सर्जरी नहीं होगी, स्टंट लगेंगे. My second request was कि मेरे बेटे को आज इंटरव्यू में नौकरी मिल जानी चाहिए. And the third, I was telling to myself and to higher intelligence कि मुझे 5 साल की मोहलत चाहिए. I am not going to die today, and I will not die. So I need 5 years to settle my sons. Imagine कि उस वक्त हर आदमी ये सोच रहा होता है कि मैं किसी तरह से मेरी जान बच जाए. बट बजाय ये सोचने के कि मेरी जान बच जाए, मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी हार्ट सर्जरी ना हो,
और मुझे 5 साल की कम से कम और लाइफ मिल जाए। एंड बिलीव मी, शाम तक मेरी 2 चीजें तो पूरी हो गई थी। 1 घंटे बाद ही मुझे पता चल गया। मुझे याद है डॉक्टर जब देख रहे थे, एंजियोग्राफी कर रहे थे, तो वो स्लाइड्स चेंज कर रहे थे और ही यूज्ड टू से कि एट दैट टाइम कहे जा रहे थे अपने कलीग से कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड probably it was magical slide number 6 where he said hang on and 2-3 बार उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि स्टंट लगा के काम हो जाएगा। तो the first wish was granted to me immediately. By the evening I got my second wish granted कि मेरे बेटे को वो नौकरी मिल गई, और थर्ड भी आई कैन से मेरी पूरी हो गई, क्योंकि 3 साल तो हो ही चुके हैं मुझे। 5 साल की मोहलत मांगी थी मैंने। दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। आप ऐसे मौके पे भी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सेकेंड, लॉ ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब आपके ग्लास में पानी भर जाता है तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि अब पानी डालना इसमें बंद कर दीजिए। देयर वाज अ गोट मैन जिसके पास बहुत सारी बकरियां थी। वो बकरी चलाता था और हर रोज उसको बहुत बकरी मिलती थी और वो बड़ा परेशान रहता था और वो हर रोज यही कहता था, या अल्लाह, हायर इंटेलिजेंस से प्लीज अब मुझे बकरियां देना बंद करिए। एक दिन उसके जहन में ये बात आई कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम नॉट टू गिव मी एनी मोर गोट्स, व्हाई कांट आई गिव माय गोट्स टू अदर विलेजर्स। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बकरी नहीं है, तो उसने किसी को 5 बकरी दे दी, किसी को 10 बकरी दे दी। अब उसको हर रोज बकरियां मिलती रही और हर रोज वो दूसरों को बकरी देता रहा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग। जब आपके ग्लास में पानी पूरा भर जाए तो आप उसको ये मत कहिए कि अब पानी मत डालो। आप ये कहिए आप पानी डालते रहिए और आप उसमें से पानी निकाल के दूसरों को देते रहिए। नंबर 3, लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक व्यक्ति था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके पास रहने के लिए मकान नहीं था, छत नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था और पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उसने पत्तियों से अपने प्राइवेट पार्ट्स को कवर किया हुआ था। तो एक दिन उधर से एक साधु महात्मा निकले, मे बी हायर इंटेलिजेंस। तो उसने उनसे पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझे रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो वो साधु महात्मा ने कहा कि आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, थैंक यू कहना शुरू कर दो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो उसे बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा हमें मिले ही क्या, उन्होंने दिया क्या कि मैं थैंक यू कहना शुरू करूं। और जैसे ही उसने ये कहा, वो पत्ती जिससे उसने अपने प्राइवेट पार्ट्स कवर किए थे वो भी उड़ गई। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था एक बड़ी अच्छी बात एक पेशेंट की। यू नो, कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक मिस्टर पेड्रो, 73 years old,
he had coronavirus and he was hospitalized. तो जब वो ठीक होके रिकवर होके हॉस्पिटल से उनके जाने का वक्त आया तो डॉक्टर्स ने उनको बिल दिया 5,000 यूरोस का। तो वो बहुत रोने लगे। तो सारे डॉक्टर्स और नर्सेस कहने लगे, मिस्टर पेड्रो प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई, आप रोइए मत, हम लोग आपका बिल दे देंगे, वी विल पे योर बिल। So he said, I am not crying for 5,000 euros. I can afford and I would pay. और उन्होंने जो जवाब दिया उससे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज रोने लगे। उन्होंने कहा, I am crying because for 1 day of ventilator, I have to pay 5,000 euros. एक दिन की ब्रीदिंग के लिए, एक दिन मुझे सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए मुझे 5,000 यूरोस पे करना पड़ रहा है। Last 73 years, higher intelligence was giving me free oxygen, free breathing, free everything, but I did not bother to say thanks even once to him. So he said, मैं इसलिए रो रहा हूं। उनकी ये बात सुन के सारे डॉक्टर्स और नर्सेज भी रोने लगे। So that is law of gratitude. Next is law of patience. देखिए, हर चीज में वक्त लगता है, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अंसार अहमद हो या संजीव शर्मा हो। You have to have patience. मैं शुरू में एक कंपनी में एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने काम किया था कुछ दिन, और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मुझे उसमें मेरे बॉस ने ट्रेनिंग में ये बताया था कि सेल्स जॉब में या किसी भी जॉब में पेशेंस बहुत जरूरी है। आई यूज्ड टू बी वेरी यंग एट दैट टाइम, इट वाज इनिशियल पार्ट ऑफ माय करियर। तो आई रिमेंबर भोपाल में हम लोग एक मेडिकल शॉप में वो एक ऑइंटमेंट हम लोग बेच रहे थे। तो वो बेचने एक मैं दुकान पे अंदर गया और उस दुकान पे बड़ी भीड़ थी और हम लोगों को एक सेल्स टॉक दी जाती थी कि ये सेल्स टॉक है जो आप सुनाएंगे अपने कस्टमर्स को और कन्विंस करेंगे, और ये स्कीम है 2 डजन, 4 डजन और 8 डजन की। तो मैं जब उस दुकान पे घुसा तो वो दुकानदार जो था वो काफी बिजी था, तो उसने कहा, हाँ बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने कहा, नहीं नहीं सर, आप अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपके 2 मिनट लूंगा। तो ही सेड, नहीं मैं तो बहुत बिजी रहूंगा, पूरा दिन ऐसे ही चलेगा। तो आई सेड, नो प्रॉब्लम, मैं वेट करूंगा। मैं वेट करता रहा और ये ऑब्जर्व करता रहा कि वो दुकानदार डॉक्टर को फोन करके ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब आज ये फलानी दवा प्रेस्क्राइब करके जाइएगा। तो मैं ये सोचता रहा कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर है, इसको तो मैं अच्छा खासा बेच सकता हूं। तो मैं वहां खड़ा रहा, चाय आ गई, चाय पी लिया, देखता रहा, वो बिल पे बिल काटता रहा, फोन अटेंड करता रहा, खड़ा रहा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए। फाइनली 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ा सा रश कम हुआ लंच टाइम पे, तो मैंने अपनी सेल्स टॉक कट शॉर्ट करके क्विकली उनको सुनाई, और उन्हें मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई 2 डजन या 4 डजन या 6 डजन की स्कीम है। आई सेड, ये 8 डजन और ये 16 डजन की स्कीम है, तो आपको 16 डजन बेच देंगे। एंड ही न्यू कि 2 घंटे 2.5 घंटे से ये लड़का खड़ा है, तो वो क्या ना करे। फटाफट मैंने ऑर्डर बनाया और 16 डजन उनको मैंने बेच दिया।
जब हम बाहर निकले तो हमारे बॉस बाहर खड़े हमारा इंतजार कर रहे थे. Believe you me, when I came out of the shop, my boss, it was his words कि संजीव तुम्हारे पैर कहाँ हैं, मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूं. तुमने प्रूव कर दिया कि मेरी ट्रेनिंग बहुत सक्सेसफुल रही है. And this is the patience required in life. And he said that day कि तुम लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे. वो बात अलग है कि उस कस्टमर को 16 डजन के बजाय फाइनली मैं खुद डिलीवरी भी देने गया और 32 डजन में दे के आया उसको. और मैंने उससे यही कहा कि नहीं, ये 16 डजन तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा, और कहा कि आप तो गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं, ऐसे दुकानदार हैं, तो आपके लिए 32 डजन क्या है. So that is law of patience. There are many universal law of nature. Law of persistence, law of honesty, law of love, and so on and so forth. चलिए अब आपको 3 और चीजें लास्ट की बताता हूं. कहा जाता है, ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यूज. Those are the values who helped all of us in fulfilling our dreams. 3 चीजें और बहुत जरूरी हैं जो मैंने अक्सर बहुत लोगों से सुनी है, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो. पहली, बी सिंसियर टू योरसेल्फ. आप कभी भी कोई गलत काम भी करें, अपने आप से जरूर कहें कि मैंने ये गलत काम किया और आगे से मैं नहीं करूंगा. अपने जमीर को मरने दीजिए. So always be sincere to yourself. The second is be sincere to your parents. मैं हमेशा देखता हूं अमिताभ बच्चन कोई भी कहीं भी कोई लेक्चर दे रहे होते हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के विषय में जरूर बातें करते हैं. लास्ट ईयर जब मैं मुंबई में था तो मैंने अर्ली मॉर्निंग टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ट्रक ड्राइवर की फ्रंट पेज पे स्टोरी पढ़ी. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. वो हाईवे पे ट्रक चलाता था. उसके भी 2 बेटे हैं और वो ये चाहता था कि मेरा एक बेटा डॉक्टर हो जाए और एक बेटा इंजीनियर हो जाए. हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बेटे डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, फिल्म स्टार हो जाएं, क्रिकेटर हो जाएं. वो ये नहीं चाहता था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बने. वो ये चाहता था कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने, एक बेटा इंजीनियर बने. तो उसने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं 18 घंटे ट्रक चलाता था, कम पैसों में खाना खाता था, क्योंकि मैं पैसे बचाना चाहता था अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए. उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी. उसको कोचिंग सेंटर में उन बच्चों को डाला और उन बच्चों ने उसको इतना अच्छा सिला दिया कि एक डॉक्टर बना और एक इंजीनियर बना. आप सोचिए कि इट इज वेरी रेयर कि ऐसा ड्रीम भी पूरा होता है लोगों का. और उसी ड्रीम के पूरा होने के बाद ऑब्वियसली उसकी फ्रंट पेज पे उसका इंटरव्यू निकला था ट्रक ड्राइवर का. तो अब आप बताइए, इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंसियर टू सच पेरेंट्स, हु वुड यू बी सिंसियर? आप किसी के अच्छे दोस्त भी नहीं हो सकते. मुझे खुद याद है, मैं बहुत बार जब दुबई में था तो अक्सर सोचता था कि मैं ये 150 दिरहम का खाना क्यों खाऊं, मुझे पैसे बचाने, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना है. हालांकि मुझे बहुत लोग कहते थे कि तुम अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते, इतने पैसे कमाते हो. So second is be sincere to your parents. And third is be sincere to your job. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई आपका जॉब है, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जॉब आपकी जॉब है. अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ऑफिस से शाम को निकलते हैं और अपने कोलीग्स के साथ
कंपनी को क्रिटिसाइज करते हैं, कोलीग्स को क्रिटिसाइज करते हैं, बॉसेस को क्रिटिसाइज करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद मत करिए। शिव खेरा इज वन ऑफ द वेरी वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर। वो बिहार के हैं और कनाडा में सेटल हो गए हैं। तो शुरू में जब वो कनाडा गए थे तो अक्सर कनाडा में तो अमूमन मैंने ये सुना है कि लोगों को जो है इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तो वो वहां पे उनको इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल गई और अनफॉर्चुनेटली 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, वो एक भी इंश्योरेंस पॉलिसी साइन नहीं कर पाए और उनकी कंपनी ने उनको नौकरी से निकाल दिया। लास्ट डे जो उनका था कंपनी में, उसी दिन इत्तेफाक से उन्होंने एक क्लाइंट के साथ शाम के 7 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था। तो शिव खेरा ने ये सोचा कि अब मैंने उस क्लाइंट को अपॉइंटमेंट दिया है तो आई मस्ट गो। ठीक है, हमारी नौकरी तो चली गई लेकिन कोई बात नहीं, एक और फेलियर। तो शिव खेरा जो है वो उस क्लाइंट के पास गए और जाके उन्होंने सेम पैशन और कमिटमेंट के साथ उनको सारी पॉलिसी समझाई और इत्तेफाक से वो कस्टमर जो है वो बहुत खुश हुआ और उसने पॉलिसी खरीद ली और चेक भी उसी वक्त साइन करके दे दिया। तो दूसरे दिन शिव खेरा अपने बॉस के पास गए और बोले, बॉस वैसे तो yesterday was my last day, but I thought कि I'm not losing anything, I have no work to do anyway, तो मैं चला गया और ये मैंने पॉलिसी बेच भी दी। And rest is history. Shiv Khera became one of the most renowned motivational speaker, author, and so on and so forth, multi-millionaire. So that is sincerity towards your job. कहते हैं have faith and you can fly even if you don't have wings. The reason why most people fail because they are not ready for success. And mind it, success and failure are part of life. And both of them are not permanent. I hope I have not gone very fast and you people are enjoying. Before I end, I'll share one very good motivational story also with you. Hope sees invisible, feels intangible, and achieves what is impossible. कहा जाता है bathing is very important. That's why it is advised every day. Personal hygiene बहुत जरूरी होती है, इसलिए कहा जाता है कि हर रोज one should take bath. And same way, one should motivate himself every day. Mind it, motivation comes from inside. It cannot be imposed from outside. एक सॉकर प्लेयर था। सॉकर आप सब लोग जानते होंगे, फुटबॉल। तो ये प्लेयर हर रोज एक क्लब में खेलने जाता था और उसके बाबूजी उसके साथ जाते थे और बाहर बैठे रहते थे। कुछ दिनों के बाद उसकी टीम, एक दिन ऐसा आया, उसकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंच गई। तो उसने कोच जी से जाके कहा कि सर, मुझे आज आप
खिला लीजिए, एंड आई एश्योर यू कि मैं बहुत अच्छा खेलूंगा और टीम को जिता दूंगा। तो कोच सेड, बेटा यू हैव नॉट प्लेड लास्ट 4 गेम्स, तुमने पिछले 4 मैचेस नहीं खेले हैं, तो मैं तुम्हें नहीं खिला सकता आज के मैच में। और वो रिक्वेस्ट करता रहा, सर प्लीज मुझे खिला लीजिए, सर प्लीज मुझे खिला लीजिए। और कोच कहते रहे, मैं नहीं खिला सकता बेटा। वी ऑल नो कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, वेदर इट इज सॉकर, इट इज क्रिकेट, इट इज टेनिस, इट इज बैडमिंटन, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं हर स्पोर्ट्स में, टू हैव बेस्ट ऑफ द physiotherapist, best of the coaches, best of the facilities, and so on so forth. तो कोच ने कहा, बेटा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज ये फाइनल है और मेरी नौकरी ही नहीं, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए अगर हम मैच हार गए। बट दिस प्लेयर केप्ट रिक्वेस्टिंग, सर मुझे खिला लीजिए, खिला लीजिए। काफी देर ये सिलसिला चला एंड फाइनली कोच ने दिल पे पत्थर रख के उसको हाँ कर दी। दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ परसिस्टेंस। तो सारी टीम जो है मैदान में उतरी। अब सारे मैदान में सन्नाटा छा गया। अरे कोच ने ये क्या किया, इस प्लेयर को खिला लिया, अब तो हम हार गए। You know, we all are very expert commentators, and especially when it comes to giving negative comments. तो सारा स्टेडियम सन्नाटे से छा गया। खैर, मैच शुरू हुआ। पहला गोल इसने किया, दूसरा गोल भी इसी प्लेयर ने किया, तीसरा गोल भी इसी प्लेयर ने किया, और फाइनली इसकी टीम फाइनल जीत गई। तो एक बार फिर सारे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और सारे प्लेयर्स और कोच ने इसको चारों तरफ से घेर के और वो खड़े हो गए। कोच ने पूछा, बेटा आज तुम कैसे इतना अच्छा खेले, तुम तो पिछले 4 मैचेस में खेले भी नहीं थे। तो ही सेड, सर आज ये मैच मेरे फादर देख रहे हैं। कोच ने कहा, तुम्हारे फादर वहां बैठे होते थे, लेकिन वो तो वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। तो उसने कहा, सर मेरे फादर अंधे थे और कल उनका देहांत हो गया। उसने कहा, सर मेरे फादर अंधे थे और कल उनका देहांत हो गया, और आज ये मैच वो ऊपर से देख रहे हैं। कहूंगा, मैंने ये सोचा कि दिस इज द बेस्ट वे टू पे होमेज टू हिम। उनकी आत्मा की शांति के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों,
We all have to motivate ourselves every day, every moment, every time. तभी हमारे सारे सपने पूरे होंगे. I hope you have enjoyed the session. आप सभी लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ मेरी बातें सुनी. मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. And I would ask all of you people, all of you, to ask questions and also give your frank opinion so that in case I need to improve, I can make improvements. Over to you, Mrinal. Thank you, Sanjeev. That was indeed a very, very gripping session, and would request participants, if anyone has any questions that they would like to ask, you could type them in the Q&A box. And Sanjeev, if you think it's fine, we could perhaps even switch on audio for one or two participants if they Yeah. would like to ask a question. Yeah, it's So- perfectly all right with me. So, guys, any question, you can raise your hand. आप अपना hand raise कर सकते हैं ना, आपको हम we can give you an opportunity to talk, या आप क्या बोलते हैं Q&A section में type कर सकते हैं. Okay, so there is one question, Sanjeev, while Yeah. the questions come up, and that question is, I want to ask about how to be persistent. How to be persistent. देखिए, मैंने आपको वो सॉकर प्लेयर की कहानी सुनाई. He was very confident about himself. और उसको ये मालूम था कि आज मैच तो जिताना ही है हर हाल में. तो ही केप्ट रिक्वेस्टिंग, क्योंकि जब आपको ये पता है कि आप जो कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो आप करके दिखाएंगे. यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर एबिलिटीज, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड यू आर मोटिवेटेड एनफ टू अचीव दैट. यू कैन बी कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट. आपको किसी भी चीज को, हम लोग देखिए, जब भी कोई चीज चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है हाफ द वे. वो कहा जाता है ना कि एक कहावत थी कि कुछ लोगों ने एक गड्ढा खोदना शुरू किया, जब उन्हें पता चला कि सोना है यहाँ पे, तो वो खोदते गए खोदते गए खोदते गए, और 2 दिन के बाद उन्होंने वो छोड़ के चले गए, और दूसरे लोग आए, उन्होंने खोदा और उनको 2 घंटे में ही सोना मिल गया. तो पहली पार्टी जो है वो परसिस्टेंट नहीं थी. तो इफ यू आर कॉन्फिडेंट, if you know that you can achieve, you can be persistent. Right. So there is another question. I'm just going to read that. If it is common, it is a common saying that what is in your destiny will reach you. If we follow all these like patience, etc., will that change, sir? It does change. In fact, आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि हाथ की रेखाएं बदलती हैं. वो भी यही कहेगा कि हर साल आपके बर्थडे के बाद, आपके जन्मदिन के बाद चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि प्लैनेट्स चेंज होते हैं. तो देखिए, अगर आप ये सोचते रहें कि हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा वही होगा वही होगा, और आप बैठे रहें और कोई एफर्ट्स नहीं करें, तो प्रोबेबली शायद आपकी किस्मत में वही लिखा है कि आपको कुछ भी, कोई अचीवमेंट नहीं हो आपका. तो जो भी चीजें हैं वो सब चेंज होती हैं. आपके एफर्ट्स पे फर्क पड़ता है. देखिए, अमिताभ बच्चन की मैंने आपको बताई बातें कि ही बिकेम सुपरस्टार एंड देन ही बिकेम बैंकरप्ट, और दोबारा फिर अगेन ही रिगेन एवरीथिंग एंड मोर देन दैट.
सो प्लीज डू नॉट थिंक कि ये इस चीज में विश्वास मत रखिए कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। कहा जाता है कि ओनली अप टू 3 to 5 years हायर इंटेलिजेंस विल कैरी यू। वहां तक जो चीजें आप करते हैं 3 साल तक। बहुत साल पहले एक आईआईएम अहमदाबाद के ग्रेजुएट ने मुझसे ये बात कही थी कि हमेशा ये देखा गया है कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, अदरवाइज आपको दिमाग देने की क्या आवश्यकता है। आपको दिमाग इसीलिए दिया गया है कि आप जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचें और डिसीजंस लें। ये मत सोचिए कि जो लिखा है वही होगा, जो लिखा है वही होगा। जो लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी सिंसियरिटी से, अपने पैशन से, अपने कमिटमेंट से। नेक्स्ट। So the next question is, how does one balance between his values and success? हाउ डज वन Balance between values and success. देखिए, अगर आप वैल्यूज में बिलीव करेंगे तो सक्सेस लॉन्ग टर्म होगी, और अगर आप वैल्यूज में बिलीव नहीं करेंगे तो आपकी सक्सेस लॉन्ग टर्म नहीं होगी। देयर इज अ लॉन्ग टर्म एंड देयर इज अ शॉर्ट टर्म। बहुत सारे आपने सुना होगा रैग्स टू रिचेज एंड रिचेज टू रैग्स। तो जो रिचेज टू रैग्स हो जाते हैं ये वही लोग हैं जो वैल्यूज और सक्सेस में बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आपको अगर सक्सेस मिल रही है, कहा जाता है मोर यू ग्रो इन लाइफ मोर हम्बल यू बिकम। आप जितना आगे बढ़ते जाएं लाइफ में, उतना ज्यादा आप हम्बल होते जाएं। सक्सेस को प्लीज डू नॉट लेट द सक्सेस गो इनटू योर माइंड। द डे सक्सेस गोज इनटू योर माइंड यू विल स्टार्ट योर डाउनफॉल। वैल्यूज जो है वो लाइफ लॉन्ग है। यू हैव टू इनकलकेट वैल्यूज इनसाइड यू, एंड सक्सेस इज अ आउटसाइड थिंग। तो आप उसको बाहर ही रहने दें। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं और बड़े हम्बल हैं आज भी, बल्कि लोगों को आश्चर्य होता है। इनफैक्ट रतन टाटा इज वन ऑफ दोस एक्सट्रीमली हम्बल पर्सन। So make a balance, and balance in a sense that always think that values are more important for me. मुझे I'll tell you very good thing. In fact मेरे एक बॉस होते थे, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को, वो साउथ अफ्रीका में थे, और अपने छोटे बेटे को उन्होंने कैलकाटा में श्री राम मिशन स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, और वो 6th में पढ़ता था बच्चा। और श्री राम किशन मिशन स्कूल जो था उसमें बच्चों को जमीन पे सोना होता था, खुद से कपड़े धोना होता था, बाहर नहाना होता था, थाली में खाना खाना होता था। तो मैंने उनसे कहा कि बॉस, आप अपने बच्चे को उस स्कूल में क्यों डाल रहे हो जहां इतनी हार्डशिप है। तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था, विच आई नेवर फॉरगेट। ही सेड, संजीव, इफ ही विल लर्न वैल्यूज, half the battle of his life he will win. जिसने वैल्यू सीख ली वो आधी अपने जीवन की लड़ाई जीत गया। तो वैल्यूज इज सेपरेट, सक्सेस इज सेपरेट। सक्सेस कैन बी शॉर्ट टर्म, वैल्यूज विल नेवर बी शॉर्ट टर्म। आज मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज जो मैं यहाँ खड़ा हूं अपने बाबूजी की वजह से खड़ा हूं। वो सुबह 4 बजे उठा के हम लोगों को लेक्चर देते थे कि देखो बेटा, वो खान साहब बड़े ईमानदार इंजीनियर हैं और इसलिए जो है लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। और हम लोग अक्सर सोचते थे, छोटे छोटे थे हम लोग, सोचते थे कैसे जल्लाद बाप है, सुबह 4 बजे जाड़े में उठा के हमें लेक्चर देते हैं, हमें क्या करना है उन लेक्चर से। बट टुडे वी फील that those values which he inculcated in us made us so successful. I hope I have answered your question. Absolutely. So there is another question. I'm just going to read that. And the question is that how can one keep yourself motivated in these tough pandemic times when the entire world is facing depression and may face recession as well? Wonderful question. 2 चीजें दोहराऊंगा।
बिलीफ। प्रिंसेस डायना का बिलीफ था कि एड्स पेशेंट को छूने से आपको एड्स नहीं होगा। दैट्स व्हाई शी हैड shook hands without even gloves. Number one. Number two, imagine उस आदमी के विषय में जिसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ और ये बताया गया कि 90% लोग सरवाइव नहीं करते हैं, और वो ये सोच ही नहीं रहा था कि वो नहीं सरवाइव करेगा। ये माइंडसेट है। आपको अपने आप को ये कहना है कि अगर 1% लोग दुनिया के ऐसे होंगे जिनको कोरोना वायरस नहीं होगा, तो वो आप उन 1% में होंगे, बिकॉज यू डिजर्व दैट। Why do you think we keep saying कि why do you think at that moment when I was almost on a deathbed, I was saying कि मुझे तो ये 3 वरदान चाहिए। तो उसी तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट पे रखिए और आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को बिजी रखिए। बहुत ज्यादा न्यूज मत देखिए। नेगेटिव न्यूज अगर आप देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर न्यूज नेगेटिव होती है, मीडिया वालों को हाइप क्रिएट करना होता है, तो वो ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएंगे, ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे, एक्साइट करेंगे, बट आप उनको सोचते रहेंगे और आपके जहन में, मैंने बताया ना, थॉट क्रिएट्स फिजिकल मैटर, इंटेंट डिटरमिन्स द एंड रिजल्ट्स। तो आपके जहन में वो नेगेटिव बातें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने आप को ये कह कह के मोटिवेट करते रहेंगे हर वक्त कि आई एम गोइंग टू बी अमंग 1% पीपल जिसको ये कोरोना वायरस नहीं होगा, तो दिस इज हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, दिस इज हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एट ऑल द टाइम। आप हमेशा ये कहिए कि आई एम अमंग द माइनॉरिटी हु डज नॉट सफर, जिसका कभी कोई बुरा नहीं होता है, बिकॉज आई डोंट डिजर्व एनीथिंग बैड। एंड आई कैन गारंटी, बहुत सारे लोग अक्सर आते हैं मुझसे, पूछते भी हैं ये क्वेश्चन, कहते भी हैं कि आपने बहुत सारी चीजें बताई थी, हमने किया, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ। बताइए ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप से सिंसियर नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऑनेस्ट नहीं है, ये वो लोग हैं जो अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है, जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो आप डिजर्व तब करेंगे जब आप वैल्यूज में बिलीव करेंगे, आप लॉ ऑफ पेशेंस में बिलीव करेंगे, आप लॉ ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करेंगे, आप लॉ ऑफ लव में बिलीव करेंगे, आप लॉ ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग में बिलीव करेंगे। आप लोगों के साथ ये चीजें स्प्रेड करेंगे कि हमें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। बट प्रोवाइडेड अगर आप खुद अंदर से ये सारी क्वालिटीज आप में हैं तब। एंड माइंड इट, यू विल सर्टेनली बी successful if you start thinking like that. I hope I've answered the question. Absolutely. Thank you so much. So I'm going to take another question. Lots of questions have come up. So this question is from Vishav Partab, and the question is how to be consistent. Whenever we try to chase dream, we are too much energetic, but by time it becomes difficult. So my question is how to be energetic all the time. देखिए, पहली चीज तो मुझे श्री हरबंश राय बच्चन की बात याद आती है, जो अमिताभ बच्चन हमेशा कोट करते हैं। वो कहते हैं कि उनके बाबूजी कहा करते थे कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, और जो नहीं हुआ वो उससे भी ज्यादा अच्छा हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रीम्स आपके फुलफिल नहीं होते हैं, कुछ चीजें जो आप चाहते हैं वो नहीं होती हैं, और वो इसीलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो आपके हित में नहीं थी। आपको, जब आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको परसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको कंटिन्यूअसली एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड रहना पड़ता है। हर चीज में देखिए वक्त लगता है। मृणाल टोल्ड यू दैट आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट फॉर ओवर 40 years। मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा, मैं आज भी 46 का ही हूं वैसे। तो वक्त लगता है हर चीज में,
चाहे कोई भी हो, वक्त लगेगा। आप अपने आप को कंटिन्यूअसली आप कीप थिंकिंग पॉजिटिव, तो आपके दिमाग में नेगेटिव बात आएगी ही नहीं। और आप ये सोच के चलिए कि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि जब आप ये कोई सपना जब आप देखते हैं, देखिए जब मैंने ये आपसे बताया कि मैंने ये ड्रीम देखा, मैंने ये सपना सोचा कि मैं जो हूं दुबई में मकान खरीद लूं, 2002 में मैंने ये सोचा था। ये बात सही है कि उसके पीछे ये भी बात थी कि रेंट्स वर वेरी हाई, और मैंने ये सोचा कि मैं 10 साल अगर दुबई में रह गया तो 10 साल में मैं जितना रेंट पे करूंगा उतने में मैं मकान खरीद सकता हूं। और 2002 में मैंने ये सोचा और प्लानिंग की और ये सपना देखा, और 2005 में 3 साल मुझे लगे वो सपना साकार करने में। जुलाई 2005 में मैंने एक नहीं दो मकान खरीद लिए। तो ये सारी चीजों में देखिए वक्त लगता है। बच्चा जब पैदा होता है तो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता है ना। आप जब साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो पहले दिन आप गिरते हैं, दूसरे दिन गिरते हैं, कई बार गिरते हैं। मुझे एक 6th स्टैंडर्ड में याद है, एक स्टोरी पढ़ाई गई थी, कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग अगेन, एट लास्ट यू विल क्लाइंब, एट लास्ट यू विल बी सक्सेसफुल। तो कीप क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग एंड ट्राइंग। तो कोशिश करते रहिए विद सेम zeal and enthusiasm and you will be successful. Thank you. Yeah. Thank you, Sanjeev. So there is one very interesting question. I thought that we must definitely read it. Before that, if I can interrupt, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न ऐसे हैं जो छूट जाएं तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस अगेन। यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस and I would be more than happy to answer even tomorrow or day after or whatever it is, through mail or mobile or whatever it is. Yeah. I'll share the email ID in the chat box just in another minute. So Yeah. अगर किसी के questions छूट जाते हैं, they can definitely write. So this question is from Zubair ul Islam, and इनका सवाल ये है, Hi, thank you sir. I really felt touched with everything you shared. Listening to all this sounded like a dream, but there is a real world which is cruel and brutal at times. My question is, why do we discuss / remember only those who were successful and achieved what they wanted? Why don't we talk about those whose world was more brutal than a dream and vanished trying? देखिए, सक्सेसफुल लोग बहुत कम हैं लाइफ में। और क्यों कम है? बिकॉज दे बिलीव इन अचीविंग सक्सेस ओवरनाइट। पहली बात, मुझे जब मैं लाइव शो दुबई में करता था तो एक 15 साल के लड़के ने मुझसे पूछा कि अंकल आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड बट मैं ये देखता हूं कि जो लोग बेईमान हैं उनके पास ज्यादा पैसे हैं। अब वो शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है। आज देखिए कितने लोगों के पास पैसे हैं लेकिन उस पैसों का उनके लिए कोई यूज नहीं है। आपके चाहे वो आप नीरव मोदी को ले लीजिए, ललित मोदी को ले लीजिए, वो किंगफिशर के जो थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, विजय माल्या, उनको आप ले लीजिए। ये सब लोग जो है क्रूएलिटी और ब्रूटल वर्ड, व्हाट यू यूज द वेरी करेक्ट वर्ड, वहां से उन लोगों ने पैसे कमाए, लेकिन आज उन पैसों का उनको क्या मिल रहा है? अभी लास्ट वर्ल्ड कप जब यूके में हुआ था तो विजय माल्या अपनी मदर के साथ मैच देखने गया था और बहुत सारे लोगों ने बाहर से खड़े होकर कहा ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। इमेजिन हाउ ही फेल्ट। तो देखिए ऐसा है कि ब्रूटल वर्ल्ड में जो आदमी एक बार जिसका माइंडसेट, कुछ लोग चेंज होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी चेंज नहीं होता है। हम लोग जो ये शेयर करते हैं लोगों के साथ अपने ड्रीम्स के विषय में या वैल्यूज सिखाने के विषय में या अच्छी बातें सिखाने के विषय में, तो इसमें कहा जाता है कि अगर 1% लोग भी सक्सेसफुल हो गए, 1% लोगों को भी आपने कन्वर्ट कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो गए। तो मुझे याद है मैं पिछले करीब 25 साल तो मुझे जरूरी हो गए, 25 साल प्लस से आई हैव बीन गिविंग लेक्चर्स टू पीपल एंड आई नो सम पीपल हैव चेंज्ड एंड सम पीपल हैव अचीव्ड far more than what they had anticipated or they had thought of.
तो आप ये ब्रूटल वर्ड की मत सोचिए। वहां पे अगर आप किसी को समझा सकते हैं, जरूर कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, लोगों को बदलने की कोशिश कीजिए, और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो शायद बदल भी जाएं कुछ लोग। बट ये है कि दिस इज द रीजन कि बहुत कम ही लोग सारी दुनिया में सक्सेसफुल हैं, which is not even 1% of the entire population. I hope this was the question. I have नहीं, not sir, digressed. I'll just sort of expand on this question a little bit. So, Yeah. while you have answered it, उनका सवाल ये था कि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की बात क्यों करते हैं, जो लोग बहुत मतलब एक सक्सेसफुल के पीछे शायद 100 फेलियर्स हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं की जाती है, बिकॉज ये बातें शायद ड्रीम की तरह लगती हैं, तो ये नहीं, सवाल हम लोग था। बहुत सारे फेलियर्स की भी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। अमिताभ बच्चन कितने फेल हुए, आसना को बहुत कष्ट हुआ, शाहरुख खान की कितनी फिल्में जो है वो फेल रही, तो हम लोग उनकी बात भी करते हैं। महात्मा गांधी की आप बात कीजिए, बहुत वक्त उनको लगा हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में। तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे फेल भी हुए शुरू में, एंड कहा जाता है कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो हम उनकी बात जब वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तब करते हैं, लेकिन हम उनके फेलियर्स की भी बात करते हैं कि कितने लोग दुनिया में फेल हुए और कितने फेल हुए, और वो फेल होने के बाद वो लोग उठे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ही बात करते हैं और वो ये लगने लगता है कि शायद ये लोग किस्मत वाले थे या किस्मत के धनी थे इसलिए इनको सक्सेस मिल गई। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत फेल हुए हैं और फेल होने के बाद सक्सेसफुल हुए हैं, एंड दे हैव नॉट लेफ्ट, दे केप्ट ट्राइंग। हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, थॉमस एडिसन से लगा के आज तक, तो आप ये देखेंगे कि कितने लोग फेल हुए हैं लाइफ में और कितनी बार फेल हुए हैं, कितनी कंपनीज फेल हुई हैं। 3M कंपनी जो बिल्कुल बंद होने के मुकाम पे पहुंच गई थी, आज कितनी सक्सेसफुल रही। बोइंग कंपनी क्लोज होने के मुकाम पे पहुंच गई थी, आज कितने सक्सेसफुल रही। मार्लबोरो सिगरेट कंपनी बिल्कुल बंद होने के मुकाम पे पहुंच गई थी, आज सारी दुनिया में छाई हुई है। तो चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, दे ऑल हैव सीन फेलियर्स। I told you success and failures are part of life and they are not permanent. Both are not permanent. So I hope I have answered the question now. Yes, absolutely. So I'm going to read another question. This is, I think, something जो will be applicable to almost everyone. What is the way to overcome tension and stress level? जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो गाने सुनना शुरू कीजिए, और हिंदी फिल्में या अंग्रेजी फिल्में जो जिसमें हंसी हो उस टाइप की फिल्में देखना शुरू कीजिए। अगर आपको इंग्लिश पिक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है तो इंग्लिश देखिए, हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी पिक्चरें देखिए, जैसे मुन्ना भाई MBBS टाइप की पिक्चरें। हमारे एक बॉस ने एक बार बड़ा अच्छा कहा था, जब उनसे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने कहा, जब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है, घर लौटता हूँ कि आज बिजनेस खराब हुआ, पेमेंट नहीं आई, सो ऑन सो फोर्थ, तो घर पे आके गोविंदा की पिक्चर लगा के बैठ जाता हूँ। हमको कई बार टेंशन होता है, थोड़ी बहुत 5 मिनट न्यूज देखा, लगने लगता है कि ये कोरोना वायरस के विषय में इतना ज्यादा लोग कह रहे हैं, जिससे मिलो वही यही बात कर रहा है। मैं ये सब चीजें छोड़ के और गाने सुनना शुरू कर देता हूँ। So what I'm trying to say, divert your mind towards something better which you can enjoy, which you like. कुछ अच्छे गाने सुनना शुरू कर दीजिए जो आपको पसंद है, whichever language you like, दोस्त लैंग्वेज के गाने सुनना शुरू कर दीजिए। किसी अपने अच्छे दोस्त को फोन करिए, उससे बातें करना शुरू कर दीजिए, या कोई अच्छे मेमोरी पे सोचना शुरू कर दीजिए, किसी के साथ अच्छे बिताए पलों के विषय में सोचना शुरू कर दीजिए, मे बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, वो सोचना शुरू कर दीजिए। सो डाइवर्ट योर माइंड। जब आपको स्ट्रेस हो, जब आपको टेंशन हो, तो दीज आर द बेस्ट रेमेडीज कि आप जो है अपने माइंड को डाइवर्ट करिए टुवर्ड्स बेटर थिंग्स,
चाहे वो पिक्चर देखना हो, चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे उन मेमोरीज की सोचना शुरू हो। आई टोल्ड यू व्हेन आई यूज्ड टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, 2-2.5 घंटे या 4-4 घंटे की ड्राइव होती थी, उस वक्त मैं अपनी पूरी सीडी रिवाइंड करके सोचा करता था। तो उस वक्त मुझे फिर कोई ना स्ट्रेस होता था, ना टेंशन होता था। शाम को आते वक्त भी बिजनेस मिला या नहीं मिला, मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, आई यूज्ड टू कीप माई सेल्फ बिजी इन पॉजिटिव थिंग्स। I hope I have answered your question. Absolutely. So there is another question, and this question is, how do you measure success? Is it by money, social stature, internal happiness, or a combination of all three? Success is something everyone has different perception about success. किसी के लिए पैसा कमाना इज सक्सेस है, किसी के लिए सोशल वर्क सक्सेस है। अभी परसों नरसों हमारे एक फ्रेंड कहने लगे, एक महिला है जिन्होंने कोलंबिया स्कूल से ग्रेजुएशन किया यूएस में, और वो ब्यूटी क्वीन बनना चाहती थी, और उन्होंने जो है जब उन्होंने उसके लिए कोशिश करनी शुरू की तो उनको ये लगने लगा कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, ब्यूटी क्वीन बनना और उसके बाद एक्टर बनना एंड सो ऑन सो फोर्थ। So she used to be very interested in yoga. So she started writing because she was highly educated, very brainy girl. She started writing. She started writing about yoga, and she became very famous yoga instructor. अब उनके लिए वो सक्सेस है, and she feels she has been extremely successful person. तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमा लेना इस सक्सेस है, कुछ लोग सोचते हैं दूसरों की भलाई सक्सेस है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, आप जाके देखिए गुड़गांव में के पास एक जगह है जहाँ पे एक साहब हैं जिनके पास बहुत इफरात पैसा वैसा सब कुछ था। उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि उनकी वाइफ उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, और उन्होंने जो है वो उन लोगों को आश्रम में अपने रखना शुरू कर दिया जिनका कोई नहीं है, या जिनको उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे उनको छोड़ के बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चले जाते हैं। और वो बड़े खुश हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 200 लोगों की जगह में 500 लोगों को रखते हैं, दिन रात वहीं पे वो बिताते हैं, बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सारी चीजें हैं। अब उनको लगता है ये उनकी सक्सेस है, because success is something what you want to achieve in life. Is it earning money? Earning money is not something very wrong. Don't take it as long as you are earning in an honest way. तो अगर आप ईमानदारी से कमाए हुए पैसे आपके पास हैं, तो अगर आपको लगता है कि मेरे लिए सक्सेस पैसा कमाना है, तो ईमानदारी से आप पैसे कमाइए, and that would be for you the success. And you can tell people very openly that my dream was to become a very rich person, and I feel I am today very successful because I have earned lots of money and I am leaving far more than what my parents had left for me. अगर आपको ये लगता है कि मुझे सोशल काम करना मेरा ऑब्जेक्टिव था और दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस, तो आप वो कीजिए, वो आपके लिए वो सक्सेस होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा भी आए, सोशल सेक्टर में भी आप आए, सोशल काम भी आप करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें। तीसरी क्या थी मृणाल? आई फॉरगॉट। सक्सेस, मनी, मृणाल? Yeah, it was internal happiness, social stature, money. These were the three things. Yeah, so internal happiness, so as I told you, whatever you want to achieve which gives you happiness. बहुत सारे लोगों को जरूरी नहीं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, वो ये चाहते हैं कि हम जो है बस अपने पेरेंट्स के साथ रहें या अपने फैमिली के साथ रहें और आराम से सुकून की जिंदगी गुजारें। हमें ये नहीं चाहिए कि हम हर रोज जो है फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं या बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं, सारी दुनिया घूम रहे हैं। दैट इज नॉट माई हैप्पीनेस।
माई हैप्पीनेस जो है, अब गांव में पहले क्या होता था, या पहले के जमाने में जब इतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं था, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोग बड़े खुश रहते थे गांव में। इनफैक्ट एक बार हमारे बॉस बता रहे थे इस कंपनी के कि जब उन्होंने शुरू में बिजनेस शुरू किया था ये सोशल सेक्टर में, तो वो गांव में गए और उनका ये मुद्दा था कि मिलियंस ऑफ पीपल दे ग्रेजुएट एवरी ईयर बट उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो उन्होंने सोचा कि गांव में जाके लोगों को लेके आए और उनको नौकरी दिलाएं। तो वो लोग गांव में गए और गांव में जाके लोगों से उन्होंने कहा कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको खुशी दिलाएंगे। So you know what lot of people they said, my boss keep telling us this thing. He said लोगों ने कहा आपसे किसने कहा कि हम गरीब हैं, हम गांव में रह रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम गरीब हैं। आपसे ये किसने कहा कि हम गरीब हैं, आपसे ये किसने कहा कि मुझे इफरात पैसा चाहिए या नौकरी चाहिए, हम बहुत खुश हैं। तो whatever is giving you internal happiness is your success, that is your goal, that is the dream you have to see. और अगर आपका इंटरनल हैप्पीनेस आपको इन सब चीजों के साथ मिलता है तो आप इन सब चीजों को भी अचीव कर सकते हैं। और इन सब चीजों को साथ में लेके चलिए विद वैल्यूज एंड बी अ पर्सन लाइक रतन टाटा। आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, वेरी हम्बल पर्सन। डॉक्टर अब्दुल कलाम, लोग कहते हैं जब वो प्रेसिडेंट भी थे तो उनके पास गिने चुने कपड़े होते थे, और जब वो प्रेसिडेंट हाउस से शिफ्ट हुए तो उनके पास हार्डली, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि सिर्फ एक सूटकेस था। उनके लिए ये हैप्पीनेस थी। ही वॉज एन एक्सट्रीमली हैप्पी पर्सन। जबकि वो चाहते तो करोड़ों कमा सकते थे। दिल्ली की मेट्रो जिन्होंने बनाई थी, आई थिंक मिस्टर श्रीनिवासन उनका नाम है, उनको गल्फ कंट्रीज में बहुत करोड़ों की जॉब्स ऑफर हुई, बहुत इज्जत के साथ। But he said, no, I'm not interested. Because you will be surprised to know that 3 मेट्रो स्टेशन का कंपैरिजन जब हुआ तो पता चला कि सिंगापुर मेट्रो took minimum time, second was Delhi and third was Dubai, जहां पे रिसोर्सेज इंडिया से कहीं ज्यादा है। बट दिल्ली की मेट्रो took the less time, much lesser time and very little more time than Singapore metro. अब उनके लिए ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। And he was not aspiring for money or anything. Otherwise, उनको तो वहां पे millions of dollars मिल रहे थे, but he didn't go. So Right. success has a different perception for different people. Thank you. That was indeed a very detailed explanation. So we have time for one last quick question, which I'm going to read. Please. And the question is how to balance work and family, because when someone is fully focused on job, they do not get, to spend quality time with family. And this is about the normal days, not pandemic situation where everyone is of course working from home. मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो साल में 2 बार फैमिली को लेकर छुट्टी पे चले जाते हैं, and they spend a lot of time, quality time with their family. That's one way. अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, कम भी पैसे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह प्लान कीजिए और चले जाइए फैमिली को लेके जहां सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी फैमिली हो, या आपके वो क्लोज लोग हो जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है। एंड फॉरगेट द एंटायर वर्ल्ड ओवर देयर। ठीक है, हम लोगों के साथ प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता है। हम लोग जब ट्रिप पे भी जाते हैं तो थोड़ा वक्त कंपनी के विषय में देते हैं, बट मुश्किल से 1 घंटा हम अलग सेट कर देते हैं। तो दैट इज वन वे ऑफ कीपिंग अ बैलेंस। द अदर वे, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। देयर हैज टू बी अ कट ऑफ टाइम। In fact, I have been telling one of my colleagues recently that make a balance between work and personal life. Give time to family. क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ये चीजें रियलाइज नहीं की थी, बट बाद में जब हमने रियलाइज करना शुरू किया तो then we started doing that and we started spending time with family also. So you have to have balance, क्योंकि अगर आपको बैलेंस नहीं होगा तो you may not be very effective in the office also. You will be stressed, you will be tense. आप
बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो आप एक कट ऑफ टाइम रखिए कि ये टाइम है, इस वक्त जो है हम, इनफैक्ट इंदिरा गांधी के विषय में लोग कहा करते थे कि वो पूरी कोशिश अक्सर करती थी कि डिनर फैमिली के साथ करें, और जिस वक्त डिनर हो रहा होता था उस वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं, फैमिली के साथ डिनर वो जब कर रही होती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम ये देखते हैं कि जब डिनर कर रहे होते हैं तो वो अपने फोन ऑफ कर देते हैं या साइलेंट पे कर देते हैं, दे डोंट अटेंड फोन कॉल्स नो मैटर हु इज कॉलिंग, बॉस कॉल कर रहा हो या कोई भी कॉल कर रहा हो। तो अवॉइड दैट। तो यू हैव टू हैव अ बैलेंस। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो प्लीज 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 टेक दिस फॉर ग्रांटेड दैट you will not be able to produce the kind of results you are expected to produce. So please have a balance in life. It is very, very important. Right. So on that note, thank you very, very much, Sanjeev. I am going to quickly run one poll, which will, if our audience can be kind enough to answer this poll, which will sort of help us understand. Great. So I think more than 75% people would want to attend such more webinars. So I think that is something which is extremely encouraging. And thank you so much, Sanjeev. That was indeed a very, very insightful session. And you very, very patiently answered so many questions. I think a lot of things for us to inspire from you. 4 decades of experience and struggles. And hopefully, I think this time that we are all in this pandemic, we are all in, we can sit back and contemplate and think about how we can really achieve the goals and dreams that we want to, and perhaps one day be narrating our stories like you are today. So thank you very, very much. And thank you all attendees for very, very patiently listening to us, and as always, coming and attending our webinars. We hope you enjoyed the session, and that's what we can see from the poll as well. We'll be sending you a feedback. Any of you have any suggestions, like Sanjeev said, I'm also putting down the email ID where you can write if any of your questions got missed, which you would like us to answer. I am putting down an email ID on which you can send your questions, and we will be happy to answer them. So thank you very, very much. Thank you so very much once again. Thank you, Mrinal. Thank you, all the attendees once again. And please be positive, stay safe, stay calm, and stay at home. Thank you very much once again. May God bless you all. Thank you. Thank you. Bye bye. Thanks. Bye. Bye.